Hey guys, hi. So very good evening to all of you and welcome to the session. So this is your master teacher Harsh Priyam and I'm again back in front of all of you with a new topic. So do you know what is that new topic? तो बात करें आज उसके बारे में. So basically the new topic which I am going to take today is how you can overcome your bad habits. Bad habits से कैसे निजात पाएं और it can be a bad habit, it can be an addiction, it can be anything of them. So how to actually do that? And that is our point of intervention today. So first of all, before getting into this topic, let me ask for all of you कि how many of you are doing good in your life? How many of you are facing problem in your life? कैसी चल रही है जिंदगी? So is it like first of all, I basically, if I'm asking you, so my motive is to ask that कोई जिंदगी में प्रॉब्लम है? Is there something, some problem going on right now in your life? And I don't want an answer that yes sir बहुत problem है. So what's the problem? Sir वो problem ये है कि वो I don't want that. I want a clarity in all of you guys कि actually what is the problem? कहाँ प्रॉब्लम है? क्या चीज में प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें? What is the thing which you are finding very difficult? What is the problem statement? First of all, I want all of you guys to, before we start this session, before I tell you about these things, that how you can actually overcome them, I want all of you to take 2 minutes, 5 minutes, pause this video if you need more time, and write it down at least in your copy कि आखिर प्रॉब्लम है क्या. What is the problem? Are you not able to study? Are you, if you are not able to study तो फिर क्यों नहीं study कर पा रहे हो? Is it because of the time problem? Is it because of the procrastination problem? Is it because of overthinking? Is it because of that you are not concentrated? Is it because that you lose motivation? What's the problem? That I want all of you to identify for yourself, because everyone has got different set of problems. Is it not the concentration problem, but is it the family environment? Is it the finance problem? Is it like you're not having good friends? Is it like some emotional problem? Girlfriend छोड़ के भाग गई, boyfriend छोड़ के भाग गया? Is it like that? Is it like that कि मम्मी पापा मुझ पे भरोसा नहीं करते, या फिर parents are not supportive? Which type of problem you are actually facing? First of all, until and unless you don't know that problem, until and unless you don't write that problem, you're not very clear with a problem statement, it won't be going away. You will not be able to remove it. So that is the first portion, that is the first point which I want all of you guys to actually think very seriously. And then we will start intervention, and then we'll start that how we can actually clear them up. Okay, so I hope you will do that. If you have already done, that's very good. If you have not done it, I request you kindly pause the video, write down those problem, and then continue. Okay, it will really help you a lot. Or if you don't want to do it right now, okay, go through the video completely entirely till the end, and then whenever you are free, just sit down, write down those problem, and again watch this video. It will really help you a lot. ठीक है, तो चलो, let's start our today's session, and let's I am here with my promise again, as what I do, that every week I'll be at least motivating you guys at least once. कोशिश तो रहती है ज्यादा मोटिवेट कर दूं, बट उतना हो नहीं पाता है टाइम के कारण से. बट यस, आई एम हियर. तो चलो, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, की पर्पस which I was talking about, कि actually if you want to overcome any bad habit, any addiction, तो उसके लिए you should know the problem statement, and that problem statement will become your purpose. That actually sir, I am having a problem of concentration. Okay, so if the concentration is your problem statement, then the purpose to overcome that bad habit is that you have to get more concentration. That is how you will get your purpose, because until unless you don't have a purpose, so कहते हैं ना कि बिना एम के आगे बढ़ने से, बिना एम के कोई काम करने से सक्सेस नहीं मिलता है. Why? Because that aim, if you don't have a aim, you don't have a purpose, isn't it? So that the same thing happens here also. अगर तुमको कोई बुरी आदत हटानी, जैसे मैं बोलूं कि तुम बुरे बच्चे हो और तुमको सुधरना है, तो तुम शायद पूछोगे मुझसे, सर मुझ में बुराई क्या है ये बताओ, तभी तो मैं उसको सुधारूंगा. नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, तुम बस बुरे बच्चे हो, तुमको सुधरना है. So does it make a sense? No, obviously no. So first of all, you all should know your purpose. That is very important. Okay. Now that could be that you have to understand. So you can take help of your friends, your family, your some elders, some of your teachers, anyone. In this case, I mostly recommend try not to take the help of friends, rather stick with family members. See, this is not a hard line boundary. Some of the students might be in such a devastated situation that they might not find any family members to be so helpful,
so worthy that they can actually believe on them. So if that is the situation, okay, you can go on with the friends. लेकिन friend वाले में दिक्कत क्या होती है? So say for example, if you are a 16-year-old kid or 20 years old adult, whatever. तो अगर तुम्हारी उम्र 16 साल है तो यू विल बी फाइंडिंग अ फ्रेंड ऑफ योर एज. ऑब्वियसली 16 साल के लोग 30 साल की उम्र वाले इंसान से दोस्ती नहीं करते. दैट इज नॉट अ फ्रेंडशिप. वो अंकल भैया होंगे बट दैट इज नॉट अ फ्रेंडशिप. तो जब तुम 16 साल के हो and you are having a friend of 16 years as well, don't you think that both of you will be having the same level of experience, and most probably both of you will be having the same level of knowledge? You might think that the person or the friend which you have is having more knowledge, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि यार उम्र उसकी भी 16 ही है. एक्सपीरियंस तो कम से कम सेम ही होगा ना. और इन सारी चीजों में जब भी हम लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, whenever we are like कि हमें कुछ इस तरह की चीजें करनी होती है, सेल्फ इंटरवेंशन, सेल्फ अपलिफ्टमेंट, इसमें एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. इसीलिए हम लोग जब किसी बड़े के साथ बैठते हैं या किसी समझदार इंसान के साथ बैठते हैं तो वो इंसान हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देता है. जैसे अगर मैं तुम्हें मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ या मैं तुम्हें कुछ सिखाने समझाने की कोशिश करता हूँ तो मैं सिर्फ ये नहीं बताता हूँ बेटा तुमको ये करना चाहिए. ऐसे तो बहुत कुछ करना चाहिए, मुझे भी बहुत कुछ करना चाहिए, तुम्हें भी बहुत कुछ करना चाहिए, बट आई डोंट टेल यू दैट. रादर मैं तुम्हें क्या कहता हूँ कि यार पता है मैंने कभी ऐसा किया था और मेरे साथ ये चीजें हुई, तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विथ यू ऑल, सो यू शुड ऑल्सो डू दैट. तो एक्सपीरियंस रियली मैटर्स और वो फ्रेंड नहीं दे पाएगा. ठीक है, तो इस चीज का कोशिश करना कि फ्रेंड्स ना होके फैमिली मेंबर्स हो जाएं, कोई टीचर हो जाए, कोई बड़ा घर का बड़ा बुजुर्ग हो जाए, दैट विल वर्क आउट फाइन. तो उनसे हेल्प लेने की कोशिश करना. दैट एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम. फर्स्ट थिंग. नाउ इफ आई मूव ऑन, so this is a very important statement before which I start this entire session. The first thing you all of you might be knowing. So if you don't know, just read it out. If you know it, तो वापस से एक बार reiterate कर लेते हैं. What? That good habits lead to good behavior. Yes. And bad habits lead to bad behavior. Yes, we know that. It is important for leaders to identify the habits that lead to undesirable individual and group behavior. So this is a team statement, but the first line is very, very important for all of you. That good habits actually lead to good behavior. And this is very, very true. So, so true. I can tell you it from my experience that good habits होने से undoubtedly behave बहुत अच्छा होता है. So you can simply like compare between a student. Say for example, I guess you all might be knowing कि early to bed and early to rise, early to bed and early to rise makes Jack healthy, wealthy and wise, isn't it? तो एक ऐसा बच्चे से बात करना जो रात को जल्दी सोता है, सुबह जल्दी उठता है और अपनी पढ़ाई अपने टाइम पे करता है. ठीक है. और एक ऐसे बच्चे से मिलके देखना जो जब मन आए तब सोता है, जब मन आए तब उठता है स्कूल जाने के लिए या फिर जबरदस्ती उठता है, लेकिन रात को वो लेट सोता है, वो जल्दी नहीं सो पाता है और वो दिन भर कभी पढ़ाई नहीं भी करता है, मतलब कभी कर लेता है कभी पढ़ाई नहीं कर पाता है. देयर इज नो रूटीन फॉर हिम और हर. उस बच्चे से जब भी तुम बात करोगे ना, यू विल फील, उसकी बातों से ऐसा महसूस हो जाएगा दैट ही इज नॉट वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ, ही इज नॉट वेरी फोकस्ड इन हिज लाइफ. ही इज ऑलवेज लाइक ठीक है यार पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को और कुछ करने की जरूरत है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, पता नहीं होगा नहीं होगा. ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो बच्चा बहुत डिसिप्लिन है ना, उससे जब तुम बात करोगे यू विल फील लाइक ओ वाओ यार क्या कॉन्फिडेंस है बंदे का, बंदा कितना सेट है, मतलब ही इज सो फोकस्ड. यू विल फील दैट, वो वाली चीज अंदर से फील आने लगेगी. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव गुड हैबिट्स. ठीक है. अब मुद्दे की बात यह आती है कि सर गुड हैबिट्स तो होनी चाहिए, सबको पता है, बनाए कैसे, या फिर बैड हैबिट्स क्या हैं, वो सारी चीजें तो बताओ, मतलब कुछ उसके डीप जाते हैं. चलो लेट्स मूव एंड लेट्स सी द डीप डाइव इन दिस. अब इसमें जो डीप डाइव करना है वो क्या है? पहला चीज, डिफाइन द हैबिट. दैट इज इंपॉर्टेंट. हैबिट होता क्या है? तो एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट हुआ था फ्यू इयर्स बैक, और उस एक्सपेरिमेंट में ये शायद तुम लोगों ने भी सुना होगा कि इफ यू कंटिन्यू एनी वर्क, एनी प्रोसेस, एनी मेथड, या कोई एक चीज तुम 21 डेज के लिए कंटिन्यू करते हो तो इट स्टार्ट्स बिकमिंग योर हैबिट. मतलब कोई भी एक वर्क, कोई भी एक पैटर्न तुम 21 डेज के लिए फॉलो करते हो विदाउट एनी ब्रेक, इफ यू डू एनीथिंग फॉर 21 डेज, तो इट इवेंचुअली बिकम्स योर हैबिट. दैट वाज अ एक्सपेरिमेंट डन. और यू कैन से कि अगर वो हैबिट नहीं भी बनता है तो उसके हैबिट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था. ठीक है,
तो हैबिट हमें एक बात तो समझ में आ गई कि कुछ ऐसी चीज होती है जो थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए कंटिन्यू किया जाए तो वो हैबिट बन जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। अब जब ये हैबिट्स, ये बात तो समझ में आ गई, अब मुद्दे की बात क्या है कि आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द हैबिट दैट नीड्स टू बी चेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो व्हिच हैबिट्स हैज टू बी चेंज, अब व्हिच हैबिट्स हैज टू बी चेंज, अगर ये वाली जानने की चीज है तो मुद्दे की बात पहले तो ये समझो कि हैबिट्स जो बदलना है, बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि मुझे क्या हैबिट बदलनी है। जैसे बहुत सारे ऐसे यहाँ पे बच्चे होंगे जिनको पता होगा कि सर मैं पढ़ाई नहीं कर पाता ज्यादा देर, या फिर सर आई एम वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, सो दे नो विच ऑफ देयर हैबिट्स दे हैज टू चेंज। या फिर सर मैं टीवी बहुत ज्यादा देर देखता हूँ, तो उनको पता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको शायद पता ही नहीं होता है कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कौन सी हैबिट चेंज करनी है। जैसे से फॉर एग्जांपल सिंपल सा है, बहुत सारे बच्चे रात को जब सोते हैं तो सोने के पहले आधे घंटे या 10 मिनट या 5 मिनट मोबाइल देखते हैं, और वो मोबाइल देखने के बाद सोते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर वो सुबह थोड़ा लेट से उठते हैं या फिर रात को उनको नींद नहीं आती। तो एक्चुअली उनको पूरे टाइम ये लगते रहता है कि मेरे को नींद नहीं आती एंड आई एम हैविंग अ सम प्रॉब्लम, सर मुझे नींद ही नहीं आती, व्हाट टू डू। बट यू नो व्हाट, exact actual problem is not the sleeplessness, actual problem is watching that mobile, because of which you are getting sleeplessness. If you want you can google it also। आप रात को जब मोबाइल देख के सोते हो तो नींद आने के चांसेस 60% रिड्यूस हो जाते हैं, ओनली 40% चांसेस बचते हैं कि अब आपको नींद आएगा। 60% केसेस में नींद नहीं आती, या नींद गायब हो जाती है अगर आप 5 मिनट से ज्यादा मोबाइल यूज कर लेते हो सोने के पहले। तो ये फैक्ट है, ये डेटा है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो अगेन यूएस वाले लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं तो वो लोग नींद निकालते रहते हैं। तो जिस बच्चे को नहीं पता है कि यार उसका मोबाइल यूज करना उसका बैड हैबिट है, तो उसको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि वो मोबाइल यूज करने से तुम्हें नुकसान हो रहा है। बहुत सारे बच्चे को क्या करते हैं ना कि वो जैसे मोबाइल में गेम खेलने की शौक शौक सबको है, तो बच्चे सोचते हैं चलो यार आधा घंटा गेम खेल लेते हैं या 10 मिनट एक गेम खेल लेते हैं, एक राउंड खेल लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। और फिर वो बोलते हैं सर आई एम नॉट हैविंग कंसंट्रेशन, मेरा प्रॉब्लम कंसंट्रेशन का है। नहीं मेरे बच्चे, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम गेम खेल रहे हो और गेम खेलने के बाद जब तुम पढ़ाई करते हो ना, तो उस पढ़ाई में तुम्हें वही गेम की चीजें वापस से याद आती हैं। So actually the problem is not about the concentration, problem is about the those mobile games and the distractions which you have created around you। कंसंट्रेशन कब क्यों कम क्यों होता है? क्योंकि आपके अराउंड बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो गए। जैसे मान लो तुम बहुत सारी चीजें करने लगो अपने लाइफ में, तो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, वो सारी चीजें तुम सोचने लगोगे, इजंट इट? जैसे कभी सोच के, कभी पूछ के देखना मम्मी पापा से, उनके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होगा अभी के एज में। पता है क्यों? क्योंकि जैसे मम्मी हो या पापा, वो लाइफ में बहुत सारी चीजें डील कर रहे हैं। जैसे मम्मी, आंटी ने ये कह दिया, चाची ने ये कह दिया, मामी ने ये कह दिया, दादी ने ये कह दिया, दादा ने ऐसा कह दिया, नानी ने ऐसा, नाना ने ऐसा, 10 बातें उनके दिमाग में चलती है। वो अगर पढ़ने के लिए बैठे भी ना, कोशिश भी करें ना, तो उनके लिए बहुत टफ होगा। क्यों? बिकॉज दे हैव सो ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस अराउंड देम कि वो नहीं पढ़ पाएंगे। एंड सेम गोज विथ पेरेंट्स, फादर के लिए भी। पापा से पूछोगे तो उनके 10 टेंशन है, वो बिजनेस में ऐसा हो रहा है, वो भाई ने पैसे नहीं दिए, उसने ऐसा बोल दिया, वो जॉब में ऐसा चल रहा है, वो बॉस ने ऐसा बोला, एंड सो ऑन। तो ये जब पढ़ाई करने बैठते हैं ना कोई भी इंसान, तो ये सारी चीजें आती हैं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे के एज में पढ़ना सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये टेंशन नहीं होती कि उससे पैसे लाने हैं, वो बॉस ये बोलेगा, वो ऐसा बोलेगा, वो ऐसा बोलेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमें तो बहुत टेंशन है। भैया टेंशन है नहीं, तुमने क्रिएट की है। तुमने अननेसेसरली 10 लोगों से दोस्ती की है, वो टेंशन हो रहा है। तुमने अननेसेसरली बहुत सारे मोबाइल से बहुत सारा गेम खेलते हो, वो टेंशन है। 10 फेसबुक अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, ये अकाउंट, दिस अकाउंट, दैट अकाउंट, तुमने 50 चीजें बना रखी है, और इसी के कारण से तुमने डिस्ट्रैक्शन अपने पास लिया है खरीद के। भैया मेरे को थोड़ा डिस्ट्रैक्शन दो, आई वांट दैट डिस्ट्रैक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये बैड हैबिट्स को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद इनको रिमूव करेंगे, ठीक है? तो पहला तो आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, मेक फुल कमिटमेंट। अभी मेक फुल कमिटमेंट क्या है कि पहला बात तो तुमको, जब तुमने ये कर लिया तो ऐसा नहीं करना कि यार मैंने बोला है इसलिए उसको चेंज करते हैं। डोंट मेक इट लाइक दिस कि अरे यार हर्ष सर बोल रहे थे कि मोबाइल पे पबजी खेलने से वो डिस्ट्रैक्शन होता है या फिर कंसंट्रेशन कम होता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं तुम सोच रहे हो ऐसा भी नुकसान तो नहीं होता होगा शायद, थोड़ा खेल लेंगे तो चलेगा, मतलब चलो आधा घंटा खेलने से ऐसा क्या ही डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, पता नहीं हर्ष सर बोले थे, मानना तो पड़ेगा, हर्ष सर अच्छे टीचर लग रहे हैं, लेकिन यार लगता नहीं है। मुद्दे की बात ये है ना कि अगर मैं बोल दूं या चाहे शायद तुम्हारे पापा भी बोल दें,
पर if you are feeling that behavior or that particular method is not wrong, you're not going to change it. ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअली उसमें दिक्कत है, और ये तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए, तुम्हें फील होना चाहिए, तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये गलत बिहेवियर है। और इसी के लिए जरूरी है ये एक गिल्टी कॉन्शियस कहते हैं, बिकॉज द गिल्टी पार्टी, जब तक तुम गिल्टी होगे नहीं तब तक तुम चेंज क्यों करना चाहोगे यार। जैसे अगर तो कोई मुझे कहता है कि सर आप खराब पढ़ाते हो, तो आई वुड से ओके ठीक है, हो सकता है मैं खराब पढ़ाता हूँ, तो बच्चा मुझे बोलेगा सर आपको पढ़ाने का मेथड बदलना चाहिए। तो अब ये बताओ कि उस बच्चे के बोलने से मैं मेथड अपना बदलूंगा, या फिर ये बात मुझे फील होनी चाहिए कि हाँ एक्चुअली मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा नहीं है। सोच के देखो, कॉमन सेंस। अगर एक बच्चा बोले या एक या 10 बच्चे भी मेरे को बोले तो मैं अपने मेथड को चेंज नहीं करूंगा अनटिल एंड अनलेस आई गेट दैट फीलिंग फ्रॉम इनसाइड कि हाँ यार हर्ष तू सही तरीके से नहीं पढ़ा रहा है। बच्चों को वो वाव वाली फीलिंग नहीं आ रही है, दे आर नॉट फीलिंग सो हैप्पी एंड नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द सब्जेक्ट। अगर ये फीलिंग मेरे अंदर आ जाती है ना, तो शायद एक भी बच्चा अगर नहीं बोलेगा ना, तो भी मैं अपने पढ़ाई का मेथड चेंज करूंगा। बिकॉज राइट नाउ आई एम इन माई गिल्टी स्टेट। आई विल बी फाइंडिंग कि नहीं यार हर्ष तू कहीं तो गलती कर रहा है बेटा, कुछ तो गलती है, तेरे को सुधारने की जरूरत है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो स्टेटमेंट था कि आइडेंटिफाई करो बैड हैबिट को, दूसरा उसके लिए फील करो कि हाँ वो बैड हैबिट गलत है आपके लिए, वो आपको नुकसान दे रही है, तब आप उसको चेंज कर पाओगे। एक बार जब वो आइडेंटिफाई होकर गिल्टी फील कर लिया, तब उसके लिए फुल कमिटमेंट दो कि नहीं यार अब ये अगर गलत चीज है पता चल गई है, तो फिर गलत काम तो नहीं करना, तो फिर इस गलत हैबिट को तो नहीं कंटिन्यू करना है। उसके बाद 100% कमिटमेंट देंगे इसको चेंज करने के लिए। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे वो भी बताता हूँ, बट हाँ यहाँ पे 100% कमिटमेंट तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि हाँ इसको चेंज करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग, steps to overcome bad habit. Next thing is a short term goals and long term goals. अभी short term goals और long term goals क्या होते हैं, तो इसको थोड़ा आराम से समझो। होता क्या है कि जैसे मान लो एक बच्चे का प्रॉब्लम है कि सर मैं आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। जिन बच्चों को प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं आता सब बता देता हूँ। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि उनको दिक्कत ये है कि वो डे ड्रीमिंग करते हैं, बैठे बैठे सोचते रहते हैं मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, उसके बारे में उसके बारे में उसके बारे में, एंड टाइम जस्ट गोज अवे, सारा टाइम गायब हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज प्रोक्रेस्टिनेशन, डे ड्रीमिंग। तो बहुत सारे बच्चे ये प्रोक्रेस्टिनेशन एक बिग प्रॉब्लम मानते हैं बिकॉज इससे काफी टाइम वेस्ट होता है। यस, कंप्लीटली एग्रीड। अब ठीक है, तुमको मान लो तुमने ये आइडेंटिफाई किया कि तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करना है, ठीक है। अब तुमने सोचा कि यार हर्षर ने आज मोटिवेट किया भाई, आज से मैंने पहले आइडेंटिफाई कर दिया प्रोक्रेस्टिनेशन गलत चीज, खटाखट काटो इस गलत वाले मतलब बिहेव को काटो, खत्म करना है। ओके ठीक है, खत्म करना है। आज सर ने ऐसा मोटिवेट किया है, कल से मैं सोचूंगा नहीं, कल से प्रोक्रेस्टिनेशन बंद। और बच्चा टारगेट उठाता है दैट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स सिंस देयर विल बी नो प्रोक्रेस्टिनेशन, तो आई विल बी, अभी वो बच्चा 1 घंटा पढ़ता है एवरी डे, नाउ ही विल बी टेकिंग अ टारगेट दैट नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टडीइंग 8 आवर्स, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन में मेरे 6 घंटे चले जाते थे, तो 6 घंटा जो बर्बाद हो रहा था वो सारा सारा मैं पढ़ाई में डाल दूंगा। नेवर एवर यू आर गोइंग टू सक्सीड इन दिस, बिलीव मी। नो मैटर मैं क्या भगवान भी आके तुमको मोटिवेट कर देना, नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है वो समझो। यार एक चीज बताओ, तुम प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत है, ऐसा तो है नहीं कि इसको तुमको किसी ने सिखाया होगा, ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर से आ रहा है, तुम बैठ के बहुत सोचते हो, ये ऑटोमेटिकली होगा। अभी ऑटोमेटिकली होगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि सर कल ही कल मैंने बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन किया और इसलिए मेरे को लग रहा है ये खराब आदत है। यू वुड हैव बीन डूइंग दिस थिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम करते करते तब तो ये आदत बुरी हुई होगी ना। तुम इसको सालों से कर रहे हो, और अब तुम इसको बदलना कितने देर में चाहते हो, 1 दिन में। ये बताओ पॉसिबल है? सालों की आ रही आदत को 1 दिन में बदलना पॉसिबल है। इनफैक्ट कितना पॉसिबल है तुम इस बात से समझो, जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, उन लोगों को एक वो आदत बदलने में कितना वक्त लग जाता है। डू यू थिंक कि ये 1 दिन में बदला जा सकता है? ऑब्वियसली नहीं। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी तरह तुम भी टाइम लगाओ, जो शराब छोड़वाते हैं वो 3 महीने 6 महीने 1 साल लगा देते हैं तब उनकी शराब छूटती है या सिगरेट छूटता है। मैं नहीं कह रहा कि तुम इतना टाइम लगाओ, बट एक रीजनेबल टारगेट तो रखो ना कि हाँ ठीक है सर, मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे को, मैं अभी 1 घंटा हर रोज पढ़ता हूँ, मेरे को इस टारगेट को 8 आवर्स पर डे ले जाना है। तो 8 आवर्स पर डे ले जाना है, तो मैं ऐसा करूंगा सर कि टुमारो आई एम हैविंग अ टारगेट कि मैं बस 30 मिनट्स ज्यादा पढ़ूंगा, 1.5 आवर्स पढ़ूंगा, 30 मिनट्स। जब तुम ये अपने दिमाग को बताओगे ना
कि यार पता है आज तेरे को बहुत ऐसा पहाड़ नहीं तोड़ना है, 1 घंटे को 4 घंटे नहीं बनाना है। तो दिमाग को बस तुमको ये बोलना है सिर्फ 30 मिनट ज्यादा, कम ऑन आयुष, कम ऑन हर्ष, सिर्फ 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स मोर। तो योर माइंड विल से ओ वाओ, ठीक है यार इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकता हूँ, चल कोई ना, तू दोस्त है मेरा, किया इतना तेरे लिए। तो अर्लियर यू वर स्टडिंग 60 मिनट्स, नाउ 30 मिनट्स एक्स्ट्रा, 90 मिनट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग ऐसा बोलेगा तुम्हें, एंड यू विल बी एबल टू अकम्प्लिश दैट 1.5 आवर। और पता है सिर्फ 30 मिनट्स का चेंज लाने से तुम्हारा जो, तुम जब गोल को अचीव करोगे ना, यू विल एक्चुअली फील कि अरे यार क्या खुशी मिल रही है, वाओ, मैंने जो गोल लिखा था, जो सोचा था अपने लिए, वो मैंने अचीव कर लिया। और ये जो सेल्फ अकम्प्लिशमेंट की जो फीलिंग होती है ना, दैट इज ऑसम। जब तुम खुद से ये खुद को कहते हो ना कि वाओ, यू डिड अ ग्रेट जॉब बॉय टुडे, इट वाज ऑसम, यू रियली नेल्ड इट। जब तुम खुद से अपनी बैटिंग करते हो ना, तो ये बहुत कॉन्फिडेंस देता है। ये बहुत जरूरी है कि तुम टारगेट ऐसा सेट करो जो अचीव हो जाए, और अचीव हो जाए तो वो रीजनेबल टारगेट हो, अचीव होगा ना तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करना शुरू करो। अगर तुम्हें 8 आवर्स तक जाना है तो धीरे धीरे पहुंचो, 30 मिनट बढ़ाओ। हो सकता है अगले दिन तुम फिर 30 मिनट बढ़ाओ, शायद उस दिन पूरा ना हो पाए, तो बोलो कोई बात नहीं, अरे इट्स ओके, 15 मिनट बढ़ाते हैं, चलो 30 मिनट पूरा नहीं हुआ, 15 मिनट बढ़ाते हैं, 1 आवर 45 मिनट करेंगे। फिर अगले दिन मोटिवेशन आया तो बोलो अब आज 30 मिनट का टारगेट लेके देते हैं, 2 आवर्स हो गया, 2 आवर 30 मिनट पढ़ेंगे। धीरे धीरे इफ यू इंक्रीज द टारगेट दैट विल बी वेरी गुड। और ऐसा शॉर्ट टर्म करते करते लॉन्ग टर्म गोल तो तुमने पहले से सेट कर रखा है, लॉन्ग टर्म गोल से कि हाँ 8 घंटे पढ़ने हैं हर रोज, 6 आवर्स 8 आवर्स वट एवर इज टाइम इज अलाउिंग यू, यू हैव टू टेक दैट लॉन्ग टर्म गोल एज वेल। तो अपने गोल्स को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करो, एक लॉन्ग टर्म गोल को और एक शॉर्ट टर्म गोल। कि शॉर्ट टर्म में हर रोज धीरे 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 इतना करेंगे, और ओवरऑल मेरे को यहाँ पहुंचना है, दैट विल रियली हेल्प यू। ठीक है, तो गोल्स ऐसे सेट करना। मूविंग अहेड, नेक्स्ट थिंग, गेट सपोर्ट फॉर ब्रेकिंग द हैबिट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इंपॉर्टेंट मुद्दा कैसे है, पता है होता क्या है, जैसे आज के डेट में, आजकल के डेट में, जैसे मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तो ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा दिख रही है। होता क्या है कि I'm not, no offenses to anyone, so please इसको कोई भी otherwise मत लेना, not to even parents and not to even students। कई बार होता क्या है कि पता है हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि वी शुड बी कम्युनिकेटिंग विद ह्यूमन बींग्स। हमारे आसपास लोग होने चाहिए, उनसे बातें होनी चाहिए, रिश्ते होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो अब आज का डेट क्या है ना कि पेरेंट्स आर वर्किंग, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस फादर इज आल्सो वर्किंग एंड मदर इज आल्सो वर्किंग। अब जब मम्मी पापा दोनों वर्क कर रहे हैं, बच्चा घर में अकेले है, कुछ केसेस में भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं, कुछ केसेस में भाई बहन नहीं होते हैं। मान लेते हैं चलो भाई बहन है, नहीं है तो वो ज्यादा खतरनाक, मतलब ज्यादा अलग सा सिचुएशन बन जाता है। तो आई डोंट नो, मैं उसके लिए बताता हूँ, आई डोंट नो नहीं, मैं उसके लिए बताता हूँ। मान लेते हैं तुम्हारे भाई बहन है, तो घर में कितने, दो। तुम्हारी एज मान लो 8 ईयर्स ओल्ड है, तुम्हारा भाई, छोटा भाई या छोटी बहन 6 ईयर्स की है या 5 ईयर्स की है। अब यार वो 8 साल वाला जो बच्चा है ना, अपने आसपास के एज ग्रुप वाला बच्चा खोजता है खेलने के लिए। दूसरा, उसको कुछ ऐसा कोई इंसान चाहिए, जैसे हो सकता है मम्मी घर में होती तो मम्मी बच्चे से बात करती प्यार से, और बेटा बताओ कैसा है, और बताओ कैसा चल रहा है लाइफ, स्कूल में क्या क्या हुआ, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट जब से फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स है ही नहीं घर पे, वो बच्चा अकेला हो जाता है, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो बच्चे को समझ नहीं आता करूं क्या। और प्रोबेबली हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीजें और बुरी चीजें होती हैं, तो बुरी आदतें सबके अंदर होती है, बच्चे के अंदर क्या, मेरे अंदर भी बहुत सारी बुरी आदतें हैं। तो पता है जब वो बुरी आदतें होती हैं, तो उसको हटाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, पहला तो मोटिवेशन, और दूसरा कि कोई पैटिंग करते रहे, कोई आसपास से देखता रहे, बात करते रहे। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जंगल में, यार पता है अगर मैं जंगल में रहने लगूंगा तो मेरे अंदर कोई बुरी आदतें नहीं और कोई अच्छी आदतें नहीं होंगी, सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि आसपास कोई नहीं है। कौन बता रहा है कि ये आदत बुरी है तुम्हारी, कौन बता रहा है कि ये आदत अच्छी है तुम्हारी, सिर्फ तुम ही हो। तो इसीलिए जब हम आसपास लोगों के आसपास होते हैं ना, तब पता चलता है आदत अच्छी है या बुरी। और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि जब ऐसा सिचुएशन हो, मम्मी पापा कोई नहीं है घर पे, या घर में बच्चा बिल्कुल अकेले है, तो उस वक्त उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस आदत को बदलना। सो दैट इज वाई, अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुम जाके अपने मम्मी से कंप्लेन करना शुरू करो कि मम्मी आप अपना जॉब छोड़ दो, या पापा आप अपना जॉब छोड़ दो, मेरे को देखो। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर इफ दे आर वर्किंग तो वो भी शायद कुछ मजबूरी के तहत, या वो भी उन्होंने भी कुछ प्लान कर रखे होंगे शायद, इसलिए वो लोग जॉब कर रहे हैं प्रोबेबली। या फिर जो भी प्रॉब्लम है, इफ दे आर नॉट एबल टू बी विथ यू, या यू आर नॉट एबल टू गेट इन टच विथ देम, तो शायद हो सकता है कुछ मजबूरी हो।
या कई सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि मम्मी पापा दोनों घर में हैं या शायद मम्मी है घर में, पापा जॉब पे हैं, बट बच्चा फिर भी कनेक्ट नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है कि शायद मम्मी से वो फ्रेंडशिप बन ही नहीं पा रही है, उतना अच्छा खुल ही नहीं पा रहे हैं मम्मी पापा से। तो इन सिचुएशन में बच्चा बहुत अकेला फील करने लगता है। और ये सारी चीजें मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि बेटा अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, इफ यू आर फीलिंग वेरी लोनली, और इसी सिचुएशन में फिर होता क्या है, वो बच्चा बाहर दोस्त खोजना शुरू करता है। और इसमें सबसे पहली चीज आती है कि नहीं यार, अगर लड़का है तो एक गर्लफ्रेंड चाहिए, अगर लड़की है तो उसको एक बॉयफ्रेंड चाहिए। वाई? बिकॉज दे स्टार्ट फीलिंग कि यार कोई तो दोस्त होना चाहिए, कोई किसी से तो बात करे। पर पता है ऐसे सिचुएशन में तुम्हें करना क्या चाहिए? इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ फ्रेंड आउटसाइड गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड खोजने के अलावा, नॉट अलावा, इसके विपरीत तुमको करना क्या चाहिए? अपोजिट टू दिस, यू शुड ट्राई फाइंडिंग फ्रेंड्स विद इन योर फैमिली। फैमिली मेंबर में किसी इंसान से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करो, थोड़ी सी कोशिश करो, हो जाएगा। मतलब इट इज वेरी मच पॉसिबल, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो इंसान तुम्हारी बात समझेगा। हो सकता है मम्मी से तुम अपनी बात बताना चाहो, शायद वो नहीं समझ रही हो या किसी चीज में बिजी हो, बट जब तुम उनको बोलने की कोशिश करोगे ना, तो एक्चुअली शी विल अंडरस्टैंड दैट यस यू नीड हर, यस यू वांट हर टाइम, दे विल एक्चुअली अंडरस्टैंड। और ये बहुत जरूरी है। और अगर मान लो फैमिली में नहीं है पेरेंट्स, या फिर पेरेंट्स से नहीं हो पा रही है वो बात, टीचर से बात करने की कोशिश करो। टीचर इज द बेस्ट पर्सन, बिलीव मी। मैंने अपने बहुत सारे टीचर्स से बहुत सारी बातें की हैं, उनसे बहुत सारा मोटिवेशन लिया है। आज भी मैं बहुत सारे अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। टीचर से जुड़ जाओ, बट कोई ऐसा साथी खोजो, कोई ऐसा दोस्त खोजो। अगेन आई एम सेइंग दोस्त से मेरा मतलब तुम्हारे एज ग्रुप का नहीं है, अपने एज ग्रुप के दोस्त को मत खोजो। इनफैक्ट टीचर या पेरेंट्स में से किसी को चुनो। ऐसा कोई फ्रेंड खोजो जो तुम्हें सपोर्ट कर सके, जो तुम्हें बता सके कि ये दिक्कत है तुम्हारी लाइफ में और तुम्हें ऐसे ऐसे बदलना है। जब तुम उसको धीरे धीरे बदल रहे हो तो वो तुम्हें पैटिंग दे सके कि हाँ वेरी गुड, वेल डन, तुमने ये वाला काम अच्छा किया, अब इसका नेक्स्ट लेवल करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उस हेल्प को पाने में कोई बुराई नहीं है। पता है, तुम अगर अपनी मम्मी को बताओगे ना, मम्मी मेरे अंदर ये वाली बुरी आदत है, तो हो सकता है शायद 1 मिनट के लिए मम्मी गुस्सा करे, लेकिन मम्मी हमेशा गुस्सा नहीं करेगी। मम्मी समझेगी कि हाँ चल ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तू सुधर जाएगा। कुछ नहीं, मम्मी को ये वाला वीडियो दिखा दो मेरे साथ, मैं जो अभी बोल रहा हूँ ना, मम्मी को बैठा के दिखा दो, मम्मी विल अंडरस्टैंड, पापा विल अंडरस्टैंड पक्का। उनसे बात करने की कोशिश करो और उनसे हेल्प लेने की कोशिश करो, ये बहुत जरूरी है। अगर हेल्प नहीं लोगे ना, तो अकेले ये पूरा बड़ा सा पहाड़ सा प्रॉब्लम्स और बैड बिहेवियर्स को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? तो ट्राई टू गेट सपोर्ट फ्रॉम दोज पीपल। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। पता है, जब हमारे रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं ना, तो हम मेंटली बहुत पीस में आ जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। जैसे कभी भी सोच के मतलब फील करके देखना, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स उनसे बहुत फ्रेंडली रिलेशन में रहते हैं, ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता के रखते हैं, देखना उन बच्चों का कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। तुम उनको कभी डरा नहीं पाओगे, मम्मी को बोल दूंगा, पापा को बोल दूंगा, बोले हाँ जाओ बोल दो, क्या दिक्कत है, उनको सब पता है। दे विल सिंपली से दैट। और ऐसे बच्चे जिनका पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा नहीं बनता ना, वो हमेशा डर के रहते हैं। ही विल लाइक कि अच्छा तुझे मम्मी को मत बोलना प्लीज, अरे अरे पापा को मत बोलना, या फिर वो मतलब एक अलग ही लेवल का उनका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है। तो ट्राई करो अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का, अपनी फैमिली से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का, बहुत जरूरी है। ठीक है? चलो, नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा जरूरी है, आज के पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अचीवर्स बाउंस बैक। होता क्या है, पता है, हर बच्चा अच्छा होता है। मेरे हिसाब से हर बच्चा अच्छा है, मतलब बिलीव में, और मैं ये सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मतलब मेरे नजर से देखो तो मुझे हर एक बच्चा अच्छा लगता है। इनफैक्ट हर एक बच्चे के पास कैपेबिलिटी है, हर एक बच्चा कुछ ना कुछ कर सकता है। तो आई फील कि नहीं यार, हर एक बच्चे में थोड़ी तो थोड़ी क्या, बहुत कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी तो है, लेकिन मुद्दे की बात यह है, अच्छा से अच्छा बच्चा भी एक ना एक टाइम गिरता जरूर है, लड़खड़ाता जरूर है। और इनफैक्ट 90% केसेस में तो ये होता है कि वो अच्छा बच्चा ये फील करते रहता है कि मैं अच्छा नहीं हूं। पर पता है, ये गलत बात नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। गलत बात कब हो जाती है, जब वो इंसान उस बुराई को या फिर अपने उस बुरे वक्त को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। he completely gets subsumed in that situation। एक बच्चा जब ये मानने लगता है ना कि मेरे से कुछ अच्छा हो नहीं सकता, मैं बुरे के लिए ही बना हूं, मेरा तो टाइम हमेशा ही खराब चलता है, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, अगर एक बच्चा ये सोचने लगे ना, तो वो एक मुश्किल हालात में है। और इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है अचीवर्स बाउंस बैक, नो मैटर। जैसे से फॉर एग्जांपल एक बाउंसिंग बॉल को देखो, अगर एक बाउंसिंग बॉल है और वो यहाँ पे कोई कपड़ा टाइप का या फिर एक सम
what you can say, elastic surface is there. So assume that this is an achiever. तो अचीवर माइट बी कमिंग टू अ वेरी लो पॉइंट इन लाइफ. तो जब ये लो पॉइंट इन लाइफ आएगा ना, तो ये लाइफ और उसको लो दिखने लगेगी. ये सतह, ये जो सरफेस है, दिस विल गो फर्दर डाउन बिकॉज बॉल यहाँ पे जंप किया, isn't it? तो दैट पर्सन विल फील कि यार पूरी जिंदगी बहुत कोई काम की नहीं है, मतलब एकदम बेकार सा फील होने लगेगा. बट यू नो दिस इज नॉट अ परमानेंट सिचुएशन. ये परमानेंट सिचुएशन है ही नहीं, बिकॉज परमानेंट तो ये है कि ये वापस अपने स्टेट में आए, ये जो डॉट 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 है, ये सरफेस वापस बाउंस बैक करे, एंड दैट पर्सन हु वाज इन अ negative state, it will bounce back and he will again regain that confidence. ये हमेशा होता है. You just need to wait for that time. You just need to hold a little. You just need to think about it. एक बार बैठ के सोचो जरा, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ये ऐसा प्रॉब्लम है जो मैं नहीं कर सकता, क्या ऐसी चीज है जो मेरे से सॉल्व नहीं हो सकती है. यू नो व्हाट, प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग. इनफैक्ट बड़े बड़े प्रॉब्लम हो सकता है शायद ये आज के डेट में, अभी जैसे गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, कोई फ्रेंड है ब्लैकमेल कर रहा है, परेशान कर रहा है, कोई पीछे पड़ गया है, समथिंग लाइक दैट. बट ये प्रॉब्लम्स भी बहुत छोटे हैं, बिलीव मी. ये प्रॉब्लम को तुम इस तरीके से देखो कि तुम अपने लाइफ के अभी लोएस्ट सिचुएशन पे चल रहे हो और अभी तुम यहाँ पे हो, बट ये सिचुएशन टेम्पररी है. it is going to bounce back and again you are going to be at top. Believe me this. और जब तुम टॉप पे आओगे तो ये फिर सिचुएशन तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखेगा, क्योंकि नाउ यू आर एट द टॉप. अब ये बॉटम की चीजें तुम्हारे फर्क ही नहीं देती. ये होगा, ये सबके साथ होता है, अचीवर्स हो, लूजर्स हो. इनफैक्ट इसीलिए मैंने कहा अचीवर्स बाउंस बैक, क्योंकि लूजर वो होते हैं जो यहीं रह जाते हैं. लूजर वो होते हैं जो बाउंस बैक नहीं, जो फील ही नहीं कर पाते, जो समझते ही नहीं कि बाउंस बैक होने वाला है और उसके पहले वो क्विट कर देते हैं. दे सिंपली क्विट कि नहीं, मेरे को अब और इस गेम में नहीं रहना है, आई डोंट वांट टू बी इन द पार्ट ऑफ द गेम, आई वांट टू क्विट. डोंट क्विट, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंजिंग, थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर गुड नाउ. ठीक है. सो दैट इज व्हाई आई से अचीवर्स बाउंस बैक एंड एवरी वन ऑफ यू आर एन अचीवर. So all those who are going to bounce back are achievers, and you have to bounce back. You have to be an achiever. समझ आ रही बात मेरी? So do not ever think that things are going to be bad for all the time forever. ठीक है, ये हो सकता है यार, चैलेंजेस किसके लाइफ में नहीं आते हैं. हो सकता है तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, दूसरा प्रॉब्लम वापस आ जाए, तुम दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तीसरा वापस आ जाए. ठीक है, इट्स फाइन. प्रॉब्लम होंगे ही नहीं ना, तो लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी. ये मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस है मेरा इन चीजों में. तो आई एम टेलिंग इट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. पता है लाइफ में जब तक चैलेंजेस है ना, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल. हर रोज तुम्हारे पास सुबह उठ के कुछ सोचने के लिए है और कुछ लाइफ में आगे करने के लिए है. ये सोच के तुम उठते हो कि यार आज इस चैलेंज से निपटना है. इसको इस पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करो कि आज इस चैलेंज से निपटना है. यू हैव अ पर्पस इन लाइफ. जस्ट इमेजिन देयर आर सो मेनी पीपल इन देयर लाइफ हु नेवर फाइंड देयर पर्पस. क्यों जी रहे हैं, क्या पर्पस है, क्या क्या काम क्या करना है. आज सुबह उठा तो दे डोंट हैव एनी पर्पस. देयर लाइफ इज वेरी मोनोटोनस. Okay, so do not get worried about the challenges. They will come, you will face it and you will bounce back, and hence you will be a achiever. In fact, you are a achiever. ठीक है. सो यस, अगर ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो वेरी श्योरली यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट इज रिक्वायर्ड इन लाइफ, एंड आई एम डैम श्योर दैट यू विल डू वेरी गुड इन योर लाइफ. पक्की बात है. ठीक है. इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग मोर, you can write out to me on this mail id. I'll reach out to you, you can reach out to me. And before leaving this video, I request all of you kindly like the video if you have liked the session, share it with your friends and subscribe the channel. ठीक है. So see you all guys in the next session with हमारा नॉर्मल उमंग वाला जो चैप्टर्स है, we'll continue that and we will see what else can be done. Okay, so see you all guys in the next session. Till then, bye bye, take care and good night. Love you. Bye bye.